So again, they put some premium fees over the robot usage. Otherwise, the rest charges are same as laparoscopy. Disseminate the knowledge amongst Indian physicians. We are very proud to be part of that, and I thank her for inviting me from New York. Thank you. Radio frequency. Also, we use a specific type of like a chair where she will sit simply, and floor laxity that improve a lot of symptoms, have therapeutic effect. For example, plasma, fat. We were talking today about fat also injection, which will help a lot in the pain, dyspareunia, atrophic vaginitis, postmenopausal patient. It's not always on the same time. It does not take a really long time to find the effect and does not need. About what are the latest advances in ops and gynae and आजकल female health के लिए क्या-क्या latest techniques develop हो रही हैं. So robotic surgery is one thing जो हमने पहले भी cover की है कि robotic surgery बहुत नए तरीके से आ रहा है और एक एस्थेटिक गायनेकोलॉजी होता है जिसके अंदर फीमेल्स की प्रॉब्लम जैसे कि उनको खांसी करने पे यूरिन लीक होना, वेजाइना ड्राई हो जाना, एज द एज इंक्रीजेस द वेजाइना बिकम्स ड्राई, दैट इज़ नोन एज जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मीनोपॉज. इन केसेस में देर इज़ नो ट्रीटमेंट अदरवाइज. द वीमेन आर टोल्ड कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ये तो ऐसे ही रहेगा, ये एज के साथ ऐसे ही रहता है, पर ऐसा नहीं है. बेसिकली दीज आर अनस्पोकन प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन एंड आजकल इनके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. जैसे कि स्पेशल तरह की चेयर होती है, हाईफेम चेयर, जिसमें एक विमेन को बैठना होता है आधे घंटे के लिए और वो पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है. देन देर इज़ समथिंग नोन एज वेजाइनल लेज़र. सो लेज़र्स हम काफ़ी टाइम से करते हैं और इन लेज़र्स को इस नॉर्थ इंडिया में मैंने इंट्रोड्यूस किया था 10 साल पहले और तब से बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है. जैसे हम स्किन का लेज़र करते हैं वैसे ही वेजाइनल म्यूकोज़ा का लेज़र करते हैं. इसमें 2 मिनट लगते हैं और कोई पेन नहीं होता और फीमेल को जो जैसे प्रॉब्लम हो रही होती है कि उनको ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, ऐसा लगता है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, पर वो एक्चुअली यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है, वो बेसिकली ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है. यूजुअली होता है लेडीज़ को मीनोपॉज के बाद 45-50 की एज के बाद. देन देर आर फ्यू थिंग्स जैसे कि एंटी एजिंग. आजकल एंटी एजिंग पे बहुत काम हो रहा है. आप लोगों ने सुना होगा डेथ बाय चॉइस, कि ज़रूरी नहीं है कि हम सबको मरना ही है. दिस इज़ द लेटेस्ट एडवांसेस विच आर हैपनिंग इन द फील्ड. आज ऑनरेबल गवर्नर सर श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने आज हमारा ये इनॉग्रेशन किया और वो बहुत अच्छे थे कि वो आए. उनकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी ही केम, क्योंकि ये लेटेस्ट एडवांसेस ऑफ विमेन फॉर विमेन इन द मेडिकल फील्ड पे थी. अब एजिंग, एंटी एजिंग के बारे में थोड़ा सा डॉक्टर आयमन आपको बताएंगे क्योंकि ये इस पे बहुत काम कर रहे हैं. Of this amazing congress here in India. India has 1/6 of the world population, so the stand of India in the world is very strong. And according to the World Health Organization, the definition of health now is complete physical, mental, social, and sexual well-being, not merely the absence of disease or infirmity. By 2026, in India, we are expecting over 100 million menopausal women. These women have a lot of living to do, 40 to 50 years after the onset of menopause. So addressing the health issues with these women, including stress urinary incontinence, vulvovaginal atrophy, interruption of their normal marital relationships, as well as vaginal relaxation syndrome, is part of complementing the health of this particular group of patients. Health is not only absence of disease, but health lifestyle. Invitation to India. I would like to say coming to India means exchanging knowledge, because what I believe in India you have really advances in laparoscopic surgery, especially in gynae. And I found today also that you have a lot of machine which is made in India and medication that we used to export from outside United Arab Emirates and with great difficulty. I found today that you have all those medical companies. My expertise or my interest actually is in gynae, and there is a big bunch of lectures where there to cover those topics. And devices, HIFIM.
Third, anti-aging drugs, so reverse aging, how we can stop ourselves from aging, what all can be done. Then a very big session was on anti-obesity, because obesity is now considered to be a disease, not a disorder. So how to tackle this obesity, and आप सबने सुना होगा many new drugs have come, Mounjaro, semaglutide, Ozempic. So how safe are they to use, what to be used in which case? So these sessions were also there. Then what are the latest advances in radiology? So it's a very high-tech conference basically to discuss what is latest available in the women health care. So this was the purpose. Also, मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर द टच क्लिनिक मोहाली। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट, रोबोटिक सर्जन एंड एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी से भी डील करती हूँ। आज मैंने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है कॉस गायनी 25, जिसमें पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं। मोर देन 250 गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं, और इसका जो थीम था वो था लेटेस्ट एडवांसेस इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। माननीय गवर्नर सर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। श्री गुलाब चंद कटारिया जी आए थे स्पेशली, और उन्होंने इसका बहुत अच्छा इनॉग्रेशन किया और सबको बहुत प्रोत्साहित किया था। और इसमें जो हमने मेनली डिस्कस किया है वो किया है कि क्या क्या लेटेस्ट एडवांसेस गायनी और ऑप्स के फील्ड में हो रहा है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, फिर एंटी एजिंग पे बहुत काम हो रहा है कि हमारी एज रिवर्सल कैसे हो। फिर लेडीज़ में एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है कि अगर जब उनकी एज बढ़ जाती है, मीनोपॉज हो जाता है, तो वजाइना ड्राई हो जाता है, खांसी वगैरह करने से यूरिन निकलने लगता है, और इनका कोई ट्रीटमेंट पहले अवेलेबल नहीं था। पर आजकल एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे लेज़र हो गया, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, हाइफो हो गया, जो बहुत सेफ़ हैं और टोटली पेनलेस होते हैं, और इनसे ये तकलीफ़ों का में आराम पाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, एक्सोसोम से ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी में अगर आप इन्फ्यूज़ करो तो उसकी वजह से आपके जो यूट्राइन कैविटी है वो बेटर हो जाती है, तो IVF में हेल्प करता है। फेस में PRP करने से स्कारिंग कम हो जाती है, और एंटी एजिंग पर बहुत काम किया हो रहा है। 25 साल की उम्र के बाद एजिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे कोलेजन्स और इलास्टिन फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं, तो उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ये भी हमने इसमें डिस्कस किया इस कॉन्फ्रेंस में। और पूरे वर्ल्ड से जो आए हैं, डॉक्टर आयमन अमेरिका से आए हैं, डॉक्टर फ़ातिमा आबू धाबी से आई हैं, डॉक्टर हिशम सऊदी अरेबिया से आए हैं, और डॉक्टर प्रियदर्शनी दुबई से आए हैं, और भी बहुत सारे लोग आए हैं। और इंडिया से मोर देन 250 सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड जूनियर गायनेकोलॉजिस्ट आए हैं टू डिस्कस द लेटेस्ट एडवांसेस। और हम एक वर्कशॉप भी कर रहे हैं 16 अगस्त को, जिसमें डॉक्टर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रही है ऑन एस्थेटिक गायनेकोलॉजी और लेप्रोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, जो कि आधुनिक तकनीकें हैं जिनसे कि कैंसर को डायग्नोस किया जा सकता है, इनके बारे में भी पढ़ाएंगे। तो PGI के भी सीनियर डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये बहुत अच्छे से चल रही है कॉन्फ्रेंस, और लोगों को बहुत सीखने के लिए मिल रहा है। धन्यवाद।